So the first action in the event would be Lord Muruga going and getting the spear, the veil from his mom, Goddess Parvati. So that would be the very first event. So Surabhadman and his brothers are all ready for the war, and now Murugan with his army of people, Navaveeragal, are already on the war field. So now Murugan goes to his mom to get the veil, which is specially given by Goddess Parvati, because Suran has got the boon that he cannot be killed by anyone else other than Lord Shiva's offspring, and the offspring cannot be created by two human beings. So that's the boon. So as all of you know, Lord Shiva opened his third eye and 6 sparks came out to the Saravana Highway, and he created 6 babies. Goddess Parvati joined all the 6 babies to create Skanda, which is Subramanya. And he was created for the very sole purpose of destroying Surabhadman. Surabhadman has got so much of boon from Lord Shiva and became so powerful, and he started torturing the entire universe. He captured all the devas and he had all the devas in his prison, and Lord Muruga is coming to save all the devas from Surabhadman. So Surabhadman has 3 brothers, Tarakasuran, Gajamukasuran and Singamukasuran. So all the 3 brothers goes to the war first and get killed by Lord Muruga, and then Surabhadman comes himself to the war, and then he realizes that Lord Muruga is none other than Lord Shiva's power, but because of his ego and anger, he didn't want to give up and he wants to continue the fight. But he pleads guilty to Lord Muruga not to kill him. And that's what happens at the climax of the war, which I will be explaining when we come to the war end. So now, as a starting point, we will carry Lord Muruga and we will have Lord Muruga get the spear from Goddess Parvati. maju Pak. Ini kalau maju kapan itu? Hah? ये कैसे हो रहा है? हो नहीं सकता। हाँ? फोन चेंज करना पड़ेगा भैया। नहीं नहीं, वो वहाँ से कुछ कोई कैमरा है। How can this take out the camera? Also. You just to see a view of other side. That's all. ठीक है। समझ गया, लाइव 2 कैमरा कंबाइंड है। हाँ, वो लाइव दिखा रहा है आगे। चलो, गो। गिर गया था डब्बे में। लड़की गिर गया था।
உமாச்சி வலம் வரா. No standing, sir, please. Please be seated. Everybody, please be seated. So now Lord Muruga has got the spear, the Shakti veil from his mom, Goddess Parvati. So as all of you know, that's the only veil or the only weapon in the entire world that can kill Surabhatman. That's the way he has got a boon from Lord Shiva. So it's a special veil, special spear. So now Lord Muruga has entered the war field and now he is going to call for the war. And prior to this, in the previous days, he had sent a peace agent, his own brother Veerabahu, for peace talks. But Surabhatman never obliged to any of the peace talks. So he called for war. And Surabhatman, because of his ego and anger, he wanted to come for the war. And he don't know that Lord Muruga is Lord Shiva's power himself. So that's the end that Lord Surabhatman will have when you having anger and ego. So that's the symbol. That's what symbolizes from this act, and that's what Skanda Puranam tells to all of us. So leave your ego, leave your anger, and be submissive towards the God. That's the meaning of Sura Samharam. It is not just Samharam of Suran. It is Samharam of all your egos and angers and all your bad thoughts. So now Lord Muruga is going to call for war with the traditional Sanganama.
now, so Lord Muruga has called for war. So the brothers of Surapadman comes to the war. So they are so much, they have so much of love towards their brother. In spite of knowing the person who has come is Lord Muruga himself, they still come to the war just because their brother said so. So they will come and get killed on the hands of Lord Muruga. So now first, Gajamugasura will come. So he is the brother of Lord Muruga, who is in the form of elephant. So he comes and he calls for war with Muruga. So let's see that. Gajamugasura gets killed, and now his next brother, Singamugasura, who is a lion-headed brother. So he also goes and tells his brother Surapadman that, Anna,
This is not something that normally happens because our brothers Tarakasuran, Gajamukasuran can never be killed, but Lord Muruga killed so easily. So that tells something. So that is Lord Shiva's power itself. So please consider and let's take this war back. But again, his anger, his ego comes into play. So he says, no. As a younger brother, you just need to follow my orders. So he says, okay. So he comes to the war field and again gets killed by Lord Murugan. So that's Surapatman's brother Singamugasuran who's going to come now. Singamukasura gets killed. So now, actually in the story, Surapatman's sons, Bhanugopan, all the other sons, they come and fight and they also get killed. But that's not normally enacted in the Surasamhara event. So we are skipping those. So now nobody else is left. Only Surapatman is left. So Surapatman comes to the war field. So quiet please. Silence.
Surabhatman comes to the war field and Surabhatman talks to Muruga and Lord Muruga gives him an option, you know, because he is such a ardent devotee of Lord Shiva, his own father, so he don't want all those talent and all those skills to go for a waste. So he gives him an option. So he says, you know, again you can still give up the war and you will not be killed and you can save your Veera Mahendrapuram, that's the kingdom that he rules. But he does not consider that. But at this time, you know, Surabhatman recognizes that it is Lord Shiva's power himself that has come. But still, because of his ego, again, anger, he does not give up. So Lord Muruga, very similar to how Lord Rama did with Ravana, Lord Muruga gives an one-day break to the war and he tells Surabhatman to go home and come back the next day if he wants to really consider fighting the war with him. So that's what we normally say in Tamil, no, Indru Boy Nalai. Go today, come tomorrow. So Surabhatman, with the head facing the ground, he just walks back. He does not take his chariot from the war field to his palace. He just walks back, looking at all the soldiers who have fallen down and his entire army fallen down. Nobody to support him, just all by himself. He just walks back, looking at the scene and goes to his palace. But again, he considers, but he decides to come back to the war just because of his anger and ego. So again and again, what Kanda Puranam tells us is to just leave the anger and ego. Just those two things. The entire Kanda Puranam, which is, you know, out of 18 Puranas in Sanatana Dharma, Skanda Purana is the biggest with 100,000 Granthas. So all the Granthas in Kanda Purana is just expanded on only these two thoughts. Leave your anger, leave your ego. And again, Surabhatman prays to Lord Muruga in the war field, not to kill him, but he cannot go back. So what's the way? That's the climax we will see now. Please come in front.
Everybody clap your hands, please. Up. Hey, Muruga. Hey, Muruga. Everybody clap. Hey, Muruga. Hey, Muruga. Hey, Muruga. Please, can you clap? Everybody clap. So all the anger and the ego has been killed. Lord Muruga did the samharam, but as I was saying, Surapatman asked Lord Muruga that if he can be saved, not without going back from the war. So Murugan granted his wish, but the way he granted is, that's what something we all have to know. Right? So Lord has to still keep up the justice, but at the same time, he has to grant the wish of ardent devotees like Surapatman. So what he did was, Surapatman, once Lord Muruga's whale tried to come and attack him, he just changed his form into a tree. So now Lord Muruga sends his spear to break the tree into two. And the two parts of the tree, one became peacock, another became rooster. So peacock became one of the Vahanam for Lord Muruga, as all of you know.
rooster went on to his Muruga's flag. So as you all can see, Muruga's flag he is holding on his left hand. It has the rooster on it. So Surapadman lives forever as an ardent devotee of Lord Muruga, and through being a peacock, his vahanam, his vehicle, and rooster being on his flag. So that's what we are going to do now. This would be the last scene of the act. Please enjoy. Oh
முருகனுக்கு திருத்தணி முருகனுக்கு அரோகரா அரோகரா பழனிவேல் முருகனுக்கு திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு கார்த்திகேயனுக்கு கந்தனுக்கு கதிர்வேலவனுக்கு சுந்தர வடிவேலனுக்கு சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு அரோகரா 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 வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு அந்த வேல் முருகனுக்கு கடம்பனுக்கு கார்த்திகேயனுக்கு சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு இந்த வேல் முருகனுக்கு ஞானவேல் முருகனுக்கு பாலமுருகனுக்கு திருத்தணி முருகனுக்கு திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு திருத்தணி முருகனுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு ஞானவேல் முருகனுக்கு ஆறுமுகனுக்கு அரோகரா திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாசம் திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாசம் கோயில் அருகில் கூடிய கூட்டங்கள் கரையா கரவரையா குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரும் இருக்கும் குமரன் மலையா திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாங்கம் கோயில் அருகில் கூடிய கூட்டங்கள் கரலா கரலையா குழந்தைகள் பெரியவர் அனைவரும் இருக்கும் குமரனவன் கரையா திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் மங்கையரி குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று வாடுகின்ற ஏழைகளை காணும் முகம் ஒன்று சஞ்சலத்தில் வந்தவரை தாங்கும் முகம் ஒன்று ஜாதி மத பேதமின்றி காக்கும் முகம் ஒன்று மங்கையரின் குங்குமத்தை காக்கும் முகம் ஒன்று ஆடி வரும் வேலைகளை காணும் முகம் ஒன்று சஞ்சலத்தில் வந்தவரை காக்கும் முகம் ஒன்று ஜாதி மத பேதமின்றி காக்கும் முகம் ஒன்று திருச்செந்தூரின் கடலோரத்தில் செந்தில் நாதன் அரசாங்கம் தேடி தேடி வருவோர்க்கெல்லாம் தினமும் கூடும் தெய்வாம்சம் வேல் முருகனுக்கு வேல் முருகனுக்கு அந்த வேல் முருகனுக்கு ஞானவேல் முருகனுக்கு எஸ்பிசி டெம்பிள் முருகனுக்கு குமரனுக்கு நந்தனுக்கு வேலனுக்கு கடம்பனுக்கு ஞானவேல் முருகனுக்கு பாலும் தேனபிஷேகமும் பாலும் தேனபிஷேகமும் பக்தர்களின் காவடியும் பக்தர்களின் காவடியும் பார்ப்பவர்கள் உள்ளதெல்லாம் பார்ப்பவர்கள் உள்ளதெல்லாம் பரங்கிரி தேவனாகி பரங்கிரி தேவனாகி சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா ஆடவனே அலங்காரனே ஆடவனே அலங்காரனே அண்டம் எல்லாம் வளமும் வந்தார் அண்டமெல்லாம் வளமும் வந்தார் அடியார்கள் காணும் போது அடியார்கள் காணும் போது ஆண்டியாய் நீ காட்சி தந்தாய் ஆண்டியாய் நீ காட்சி தந்தாய் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா அப்பனுக்கு உபதேசி
சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா செந்தூர் கடற்கரையில் செந்தூர் கடற்கரையில் தேவர்களை காத்திடவே தேவர்களை காத்திடவே பார்ப்பவர்கள் மனம் மகிழ பார்ப்பவர்கள் மனம் மகிழ சூரனை சம்ஹாரம் செய்தாய் சூரனை சம்ஹாரம் செய்தாய் சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சேனைக்கு அதிபதியாகி தேவர்களை காத்திடவே தேவர்களை காத்திடவே திருத்தணிகை மலை தனிலே திருத்தணிகை மலை தனிலே திருமண கோலம் கொண்ட திருமண கோலம் கொண்ட சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா முத்திக்கு வழி தேடியே முத்திக்கு வழி தேடியே முதியோரும் இளைஞர்களும் முதியோரும் இளைஞர்களும் மலைகளெல்லாம் ஏறி வந்தோம் மலைகளெல்லாம் ஏறி வந்தோம் மாதவன் வருகரணிவா மாதவன் வருகரணிவா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா சின்ன சின்ன முருகா முருகா சிங்கார முருகா திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தால் முருகா திருத்தணிமலை மீது எதிரொலிக்கும் திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தால் முருகா திருத்தணிமலை மீது எதிரொலிக்கும் திருச்செந்தூரிலே வேலாடும் முன் திருப்புகழ் பாடியே கடலாடும் திருச்செந்தூரிலே வேலாடும் முன் திருப்புகழ் பாடியே கடலாடும் திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தால் முருகா திருத்தணிமலை மீது எதிரொலிக்கும் பழனியிலே இருக்கும் தந்த பழம் நீ பார்வையிலே கொடுக்கும் அன்பு பழம் பழனியிலே இருக்கும் தந்த பழம் நீ பார்வையிலே கொடுக்கும் அன்பு பழம் பழமுதி சோலையில் முதிர்ந்த பழம் பழமுதி சோலையில் முதிர்ந்த பழம் பக்தி பசியோடு வருவோர்க்கு ஞான பழம் பக்தி பசியோடு வருவோர்க்கு ஞான பழம் திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தால் முருகா திருத்தணிமலை மீது எதிரொலிக்கும் சிறப்புடனே கந்த தோட்டமுண்டு சிங்காரமயிலாட தோட்டமுண்டு சிறப்புடனே கந்த தோட்டமுண்டு சிங்காரமயிலாட தோட்டமுண்டு உனக்கான மனக்கோயில் கொஞ்சமில்லை உனக்கான மனக்கோயில் கொஞ்சமில்லை அங்கு உருவாகும் அன்புக்கோ பஞ்சமில்லை அங்கு உருவாகும் அன்புக்கோ பஞ்சமில்லை திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தார் முருகா திருத்தணிமலை மீது எதிரொலிக்கும் 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 வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு கந்தனுக்கு வேலனுக்கு குமரனுக்கு கடம்பனுக்கு கந்தனுக்கு கொடும்பனுக்கு வேலனுக்கு வெற்றிவேல் முருகா வெற்றிவேல் முருகா வீரவேல் முருகா வெற்றிவேல் முருகா வேல் வேல் முருகா வீரவேல் முருகா கந்தனுக்கு
வேலனுக்கு, குமரனுக்கு, கடம்பனுக்கு, சுப்பிரமணிய வேலனுக்கு, சுப்பிரமணிய வேலனுக்கு, வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, அந்த வேல் முருகனுக்கு, ஞானவேல் முருகனுக்கு. Good job, everyone. So that was a grand conclusion of the Sura Samhar event. Hope you all enjoyed it. So at this time, I would want to give a big round of applause to all the volunteers who carry our Sura. A big round of applause to Anil Cheta and his team for the Chanda Mela. So a big round of applause for all the garlands that you see on a daily basis. That's Sairam and Tulasi. And this time we wanted to make the Suran as big as possible, and we got a in-house architect to do that. She is an ardent devotee of SVCC temple. I don't know if she is here. Subhashni Garu, if you are here, please give a big round of applause to Subhashni Garu. So she single-handedly built the entire Suran, and we got the face and all the ornaments from India. It's made of white glass. We got it with the help of all the devotees. We got it, and that's the Suran and all the asuras that you saw just now. And last but not the least, please give a big round of applause to all the priests, resident priests here, who worked so tirelessly towards this event. Raja, Skanda Dikshit, Srikant, Murali, and last but not the least, our famous cook, Ramdas sir. All the wonderful prasadam that you see is from him. And today, Ramdas has been supported like any other big event by none other than our Ashok and team. I don't know if he is here anywhere, but Ashok has been very helpful. And in spite of his busy schedule, he actually owns the company, but still he comes and do the seva. So give a big round of applause to Ashok. So today you may have seen our Dikshita is missing in action, but I'm sure he is seeing through one of the cameras or through Facebook Live. So he really misses this event, and he wanted to share his blessings and wishes for the entire devotees people here in Vermont. And he is actually in India. He has gone for his personal commitments, and he will be back here by end of November. So this event and all the service that the temple does for the community would have been not possible because of, if not for Pandit Umashankar Dikshit. So please give him a big round of applause. So now we will be starting the grand 6th day. Santa Sashti celebrations has been going on for the last 6 days. Today is the conclusion day, and we will be concluding that with the Rudrabhishekam for Lord Muruga, who is very tired because of the war, and now he gets the Rudrabhishekam. You all pray to Lord Muruga to not go into the war and get our anger and ego killed, but through our devotion and through our bhakti. So we will start the Rudrabhishekam. That will go on for probably 30 minutes, and then we will start our regular Gakara Ganapati Sahasranama for Lord Ganesha, and then Durga Ashtotram. So today we are behind schedule by 30 minutes. So please, the regular devotees who want to stay are with us. Special day, so please follow the schedule. And those of you who want the Sankalpam, please do not ask it now. So we will do the Sankalpam once the puja is done. So now the priest will do the Samohika Sankalpam, where you can all say your Gotram and Nakshatram in your mind. And please be seated, and kind request, please take care of your kids. Do not make them make some noise. So please, everybody silent. Thank you so much. You can watch from the Facebook.
So for those of you sitting there, Facebook Live is on. If you go to facebook.com/STCC Temple, you can watch the Abhishekam. Sorry, there's no other better way. That's the production video. ओम श्री गुरुभ्यो नमः ओम ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्तेन्द्रश्चाग्निश्चराष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति जनुर्वागस्मानुपष्टुतैरेतो देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः जय भवरोगिणां जय सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दुर्गन्धारं तत्र देवताह्वानलाञ्छनम् ये भूता विघ्नकर्ता शैलश्चन्द्रशिवाज्ञया सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभे त्वं च धारय मां देवी पवित्रं गुरुशासनम् कर रहा हूँ शुभे शोभने मुहूर्ते आंते ब्रह्मण आदित्य प्रहादेश्वतमः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे वर्तमानशतकण्डे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके चन्द्रमाने नमस्य प्रभवादिशच्च संवत्सराणां मध्ये स्मृते लवनवसंवत्सरे दक्षिणायने शरदृतो आश्विनमासे शुक्लपक्षे षष्ट्यायां वासरस्तु भूमवासरेक्तां शुभनक्षत्रां शुभयोगां शुभकण्डे एवं गुणांशे अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य विजय वीर अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुण्य पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं विशेषेण समस्त सन्मंगल अवाप्त्यर्थं श्री सुब्रह्मण्येश्वर महागणपति सन्निधौ षोडश उपचार पूजा पूर्वक रुद्राभिषेकाख्यं वारे वारे कर्तव्य एतद्वार प्रयुक्त गकार गणपति सहस्रनाम पूजां च कारयिष्ये। ओम तंगत्वेन कलशाराधनं करिष्ये कलशगन्धाक्षता पुष्पैर्भ्यश्च हस्तैनाशाद्या ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिताः मूले दशरथो ब्रह्मा मध्ये कुक्षोदसाः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा सहिता सर्वे कलशाम्ब समाश्रिताः सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु विश्वाभूतान्याप प्राणावाप पशवापो नमापो नमाप सम्राडापो विराडाप स्वराडापश्चन्द्रायुष्यापो विश्वापो युष्याप सत्याप सर्वादेवता आपो भूर्भुवस्वापो सरस्वती सुदृष्टो वर्णो सदा प्रोज्ञया सिद्धिया वरदुजेन तस्या विजये सुरक्षा सुशोभया यावद्केन पूजा द्रव्याणि सौभाग्यमण्टकं च प्रोक्ष्य देवम् आत्मां च प्रोक्ष्य सम्प्रोक्षं कृत्वा तत्सेन सुचेत यातो निर्विघ्नसिद्ध्यर्थं सुब्रह्मण्येश्वर प्रार्थनां च करिष्ये। इंद्रायाहि सहस्रयुगे अग्निर्विभ्राष्टिवसनः वायुष्वेदसि गद्रुकः संवत्सरो विषुवर्णैः इत्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्योऽगं सुब्रह्मण्योऽगं सुब्रह्मण्यो
तन्नः स्कन्दः प्रचोदयात् तन्नो वह्नी प्रचोदयात् तन्नो देवसेना प्रचोदयात् ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् रत्नसिंहासनार्थं पुष्पाक्षतां समर्पयामि आवाहन स्थापना संविधान सन्निरोधना दिग्बन्धना तालत्रय देवरुद्रा पुष्पा इदं स्वागतं स्वागतार्थे नमस्कारं समर्पयामि ओम स्कंदाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ओम स्कंदाय नमः हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि ओम स्कंदाय नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नापयामि स्नानम् योमश्रिवतमोरसस्तस्य भाजयते हरः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयथाचनः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्वाप्याय स्वसुते सुते विश्वतस्सो मदृष्टियम् भवावाजस्य सङ्गर्भे सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भगवद्भवाय नमः विष्णोरश्वस्य वादिवः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणआयुर्विदारिषते देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रबलाय नमः सर्वभूतमनाय नमो मनोन्मनाय नमः स्नानं समर्पयामि शुक्रमसिद्ध्यो विवसितेजोऽसि देवो वत्सविभोत्पुनात्मच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः मधुवादायते मधुसरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सम्पोषति मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पात्रिमहुम्रजः मधुद्यौरस्तुरः पिता मधुमाग्नो मनःसविर्मधुमाग्नस्तु सूर्यः माध्वीर्नावो भवन्तु समर्पयामि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं च समर्पयामि पवस्पतिभ्याय विद्महे स्वादुरिन्द्राय स्वभिरीयुनाय स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमारुमदाभ्यः शर्करास्नानं समर्पयामि ईश्वरः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो शर्करास्नानानन्तरे शुद्धोदकस्नानं च समर्पयामि पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिं प्रसूनास्थानो चन्द्रं पंचामृताभिषेकं
यन्मयानुश्रुतम् मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितम् मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे निर्णुत मृत्तिके तया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम् पवित्रेण विचर्षणिः पुरन्तु मा देव जनाः पुरन्तु विश्व आयवः पवित्रेण पुनाहि माम् अग्ने कृत्वा क्रतुं रणो अग्ने विततमन्तरा देव सवितः इदं ब्रह्म पुनीमहे यस्यैव कीर्तनुतो वेदपृष्ठाः यज्ञस्यामपतयोरयेयाम् प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुष्ठुप् छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषस्य एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपुष्पङ्गात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिषोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकर्त्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः ऋषिपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वशने निरूढपुष्पङ्गात्मने कवचाय हुम् ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय औषधे सर्वकर्त्वात्मने वस्त्राय भय भूर्भुवस्वरो इति दिग्बन्धः ज्ञानम् आपादाय नमस्तरां तद्भुवनं ब्रह्माण्डमाविस्फुरते ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोमाकृतमेकनीशं रुद्रानुमाकाञ्जपन् ध्याये दीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिच्ये शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहामहितशिवरुदां भासमानाभुजङ्गैः कण्ठे कालाकबन्धा ललितशशिकला षण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटितविभवा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्तं प्रकटितविभवा नः प्रयच्छन्तु सौख्यम् शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकम् सुखं पूर्णं चिदानन्दं सदा शिवमहं भजे गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिश्रीरसादनम् शञ्चमे वयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्दाच मे धर्ताच मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविश्च मे यात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे शीलञ्च मे लयश्च मधुरञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयश्च मे दीवाकुश्च मे दीर्घायुर्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे शुलञ्च मे शयनञ्च मे सूषाच मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमस्ते रुद्रमन्यो उतो वैष्णवे नमः नमस्ते अस्तुरन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या तैषु शिवतमा शिवं बभूव ते नमः शिवाशरव्याया
कवतयानो रुद्रमृणया या ते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापनाशिनी तया सर्वासन्नमया गिरिशन्ताभिषाकशी या विशुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तमे शिवां गिरित्रवां गुरुमाहिगुंसीं पुरुषं जगत् श्रेण वदसा त्वागिरिसाक्षावदासि यदा सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अध्यवोचनति वक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीकृष्ट सर्वान् सर्वाश्रयातु भाग्यः असौ यस्ताम्रो अरुणौरवभ्युः सुमङ्गलः ये चैवागुं रुद्रा अभियो दिक्षुश्रितात्सहस्रो वैशागुं भेडगीमहे असौ यो वसत्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपादृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृणयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदृशे अथो ये अस्य सत्त्वादोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च जन्मरस्त्वमयोरास्ति योग्याम् याश्च ते हस्तैषवः पराता भगवो वप अवदत्य धनुष्पगुं सहस्राक्षसतेषु ते शीर्यशय्यानामुकाशिवो नः सुमना भव विद्यन्धनुक्तवन्दिनो विशल्यो मानवागुम्बुता अनेशन्नस्येषव आगुरस्य निषङ्गतिः याये हेतिर्मे कृष्णमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्मयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्मायुधाय नादताय धृष्णवे उपाभ्यामुतये नमो आहुभ्यामुतमधन्मने परिते धन्मनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो यैषुजिस्त्रवारे अस्मिन् विदेहितम् सम्मदे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः स्वस्तिञ्जराय द्विषीमते पतीनां पतये नमो नमो वृक्षाय दिव्यादिनेतानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूराय अन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिकाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वायुवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय कन्दयते पतीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सामानाय विव्याधिगणां व्याधिनीनां पतये नमो नमः प्रभुवाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिनैषु विमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिसरारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकालिभ्यो जिहागुं सद्यो उष्णतां पतये नमो नमो श्रीमध्यो रक्तं जरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः शीशिरे गिरिचराय कुरुञ्जानां पतये नमो नमः इषुमभ्यो धन्वादिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिगतानेभ्यश्च वो नमो नमः आयत्सद्यो विसृज्यश्च वो नमो नमः यद्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्यो दाग्रभ्यश्च वो नमो नमः स्त्रिष्टभ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्यस्त्रिकुम्भदेभ्यश्च वो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च वो नमो नमो प्राणेभ्यो प्राणपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो अद्यहक्षुषकेभ्यश्च वो नमो नमो विद्याधनेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः संग्रामिभ्यश्च वो नमो नमः रक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलारेभ्यः
कुमारेभ्यस्तमो नमो नमः पुण्यश्रेभ्यो निशानेभ्यस्तमो नमो नमः ईश्वरेभ्यो धर्मकृभ्यस्तमो नमो नमो वेदभ्यस्तमो नमो नमः भ्यस्तमो नमः ओमाय नमः सर्वाय नमस्ते नमो नीलग्रीवाय त्रिविक्रमाय नमः कवर्तिने सत्युत्तमेशाय नमः स्वाक्षाय नमः नमो गिरिशाय त्रिविलिष्टाय नमो नीरुष्टमाय नमो रस्वाय च वामनाय नमो हरये नमो भोगाय समृद्धये नमो अग्रियाय च प्रथमाय नमः आश्रयकाधिराय नमः शीघ्रियाय शीघ्राय नमः पूज्याय नमः संज्ञाय नमः स्वरस्याय दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय कनिष्ठाय नमः पूर्वजाय च वरदाय नमो मध्यमाय च वल्भाय नमो जगन्याय च बुद्धियाय नमः सोम्याय च विष्णुयाय नमो याम्याय च क्षेम्याय नमः पूर्वयाय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसाम्याय नमो क्षिराय नमः श्रवाय च प्रविष्णाय नमः आश्रेणाय च शाश्वताय च नमः शूराय च विन्दते च नमो वर्मिने च वरुदिने च नमो विर्मिने च कवचिने च नमः सुराय च शतसेनाय च नमो दुर्दुभ्याय च हरण्याय च नमो विष्णवे च प्रभुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च श्रीमते च नमः तीक्ष्णे च मेघायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च वध्याय च नमः प्राप्याय च नीत्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमः राज्याय च वैश्वताय च नमः भूप्याय च भट्याय च नमो वर्षाय च वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेष्ण्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमः नमोवाय च रुद्राय च नमः श्रावणाय च अरुणाय च नमः शङ्काय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्ते च हनीये च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः दीर्घाय च पूर्याय च नमः भार्याय च भार्याय च नमः प्रकरणाय च उत्तरणाय च नमः कार्याय च लाभ्याय च नमः सत्याय च भेद्याय च नमः श्रीहर्याय च प्रभाध्याय च नमः च प्रपद्याय च नमः कुशलाय च शयनाय च नमः कमतिने च पुलस्ते च नमः भोज्याय च कृत्याय च नमः स्थल्याय च गेह्याय च नमः पाट्याय च कर्मरेष्याय च नमो हृदयाय च निरेष्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्याय च हरियाय च नमो लोप्याय च लप्याय च नमः पूर्याय च सूर्याय च नमः पर्याय च वर्णशल्याय च नमः पुरमाणाय च विघ्ने च नमः विघ्ने च प्रविघ्ने च नमो हिर्येभ्यो देवाभ्यो नमो ऋषिभ्यो नमो ऋषिभ्यो नमो आदित्येभ्यो नमो आदिवक्तेभ्यः रामे अन्नसरस्वती ललितं नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां आत्मेषां रोगो येषां किञ्चनामपते याचे रुद्र शिवा तनो शिवा भीषणी शिवा रुद्रस्य भेषजी तयानो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तमसे कमर्दिने श्रयत्तीराय प्रपरामहे मतिम् यदा नक्षमसद्विपदे चतुष्पदे विष्णुं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् नातुरं मृडार्णो रुद्रो तनो मयस्पति श्रयत्तीराय नमसा विधेमते यशं चयोश्च मनुराय ये पिता तदस्यामतवरुद्रः प्रणीतो मानो महात्तमुतमानो अर्कभगवानो शतमुतमानो क्षिरं मानो हरीश्वरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवोरुदयः मानस्तोके कणये मानः युषिमानो गोषुमानो अश्वेश्वरीशः हीनात्मानो रुद्रभागितो मदिरिभविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोभ्रमुदपुरुषज्ञे क्षयत्रीराय नमस्ते देवस्तु रक्षाचनो अधिदेवं पुरुषदाशर्मयच्छद्विवः गुणाचरित्रे रुद्रस्तवानो मन्यन्ते अस्मन्यो बन्धु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्मन्तु परिन्देशस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरामभवद्भिर्धनुष्वनीध्वस्तोपाय तनयाय मुनया वीरुष्टम शिवतम शिवो न सुमनाभव परमेयुष्यायुधं विदाय कृत्युर्वसान आचरभिरामं विप्रदातये वीरविरोहित नमस्ते अस्तु यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यमस्मन्निव बन्धुताः सहस्राणि सहस्राभावोस्तव हेतयः
सामीशानो भगवत्पराजी नामुपातजी सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्राणि भूम्याम् येषां सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महार्यर्णवे अन्तरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाः शिशिखण्डाः सर्वाभरणाः क्षमाचराः नीलग्रीवाः शिशिखण्डाः दिवकुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु संविष्टाः नीलग्रीवाः विलोहिताः ये भूतानां महिमनयो विश्वासक्तपन्थिनः ये राज्येषु विविध्यन्ति मात्रेषु विपतो जनानि ये पदात्मविरक्षायैलमृदाययुधः ये तीर्थानि प्रचरन्ति विशावन्तो निषङ्गिणः तदेलावन्तश्च भूयाकुन्तश्च दिशो रुद्रा विलस्थिरे येषां सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्नं वातो दशभ्यो दश प्राची दश दक्षिणा दश प्रतीची दशोदीची दशोभास्तेभ्यो नमस्ते नमणे तुलेयं विष्णो यक्षणो वेदिनं भूतं वेदरामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकयो वन्दनात् मृत्यो रुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्रिय औषधिषु यो रुद्रो विश्वाभुवनं विवेक तस्मै रुद्राय नमो वदतु नमोश्रीयस्यधन्वा यो विश्वस्य निवेशदस्य यशामहे सौ मनसाय रुद्रं नमो देवसुरकुलस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेवेशोऽयं शिवाधिवर्षणः एके सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मध्यायमन्तमे आदित्यस्य मायया सर्वानवेदामहे मृत्युञ्जये स्वाहा मृत्युञ्जये स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां रन्तिरुद्रो मां विहाकलः एनान्ययाः स्वाहा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि शान्ति शान्तिः सदा शिवो एकादशमे दशमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकादशमे त्रयोदशमे पञ्चदशमे सप्तदशमे नवदशमे एकविंशतितमे त्रयोविंशतितमे पञ्चविंशतितमे सप्तविंशतितमे नवविंशतितमे एकत्रिंशतितमे त्रयस्त्रिंशतितमे चतुर्दशमे षोडशमे द्वादशमे षोडशमे विंशतितमे चतुर्विंशतितमे षड्विंशतितमे द्वात्रिंशतितमे षट्त्रिंशतितमे चत्वारिंशतितमे चतुश्चत्वारिंशतितमे षट्चत्वारिंशतितमे द्वादश प्रसवश्च प्रियश्च खलुश्च सुवश्च मुहूर्ताश्च व्यष्टियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भौमनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च बृहस्पतिरुक्ता मदानि विश्वे देवासु प्रवाज पृथिवी मातर्माहिगुंसे मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमदीं देवेभ्यो आशमुद्याशगुं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अहन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्निहोत्रात्मने हत्याय नमः कृष्णपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखाये वषट् निरोधवशमन्त्रात्मने कवचाय हुं ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय औषध सर्वकृत्वात्मने हस्त्राय पट पूर्वस्वरोमि दिग्विमोहः शुद्धस्फटिकसङ्काशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदा शिवमहं भजे
இந்தாங்க ரகு தம்பி. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு எஸ்பிசி முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு எஸ்பிசி சுப்பிரமணியனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு ओम वल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्य स्वामिने नमो नमः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि रुद्रं समर्पयामि पवित्रं समर्पयामि समर्पयामि अलङ्कृतायिमे गन्धं समर्पयामि गन्धस्योपरि हरिद्रां समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि देवसेना समेत सुब्रह्मण्य स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम अनुग्रहेण धनकनक अस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम समस्त दृष्टि दोष शत्रुबाधा निवारण अर्थम विशेषेण अस्मिन् लोके आगत महामारी वीराणुरोग निवृत्ति द्वारा सर्वे प्रजाः सुख शांति सिद्ध्यर्थम सुब्रह्मण्य सन्निधौ अष्टोत्तर शतनाम पूजा पूर्वक षोडश उपचार पूजा करिष्ये। ओम नमो भगवते सुब्रह्मण्य स्वामिने नमो नमः। ओम स्कंदाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम षण्मुखाय नमः। ओम पालनेत्रसुताय नमः। ओम प्रभवे नमः। ओम पिंगलाय नमः। ओम कृत्तिकासूर्णवे नमः। ओम शिखिवाहनाय नमः। ओम द्विषद्भुजाय नमः। ओम द्विषनेत्राय नमः। ओम शक्तिधराय नमः। ओम विशिलासप्रभञ्जनाय नमः। ओम तारकासूरसंहाराय नमः। ओम रक्षोपरविमर्दनाय नमः। ओम मत्ताय नमः। ओम प्रमत्ताय नमः। ओम उन्मत्ताय नमः। ओम सूरसैन्यसुरक्षकाय नमः। ओम देवसेनापतये नमः। ओम प्राज्ञाय नमः। ओम कृपालवे नमः। ओम भक्तवत्सलाय नमः। ओम उमासुताय नमः। ओम शक्तिधराय नमः। ओम कुमाराय नमः। ओम क्रौञ्चनारायणाय नमः। ओम सेनान्ये नमः। ओम अग्निजन्मने नमः। ओम विशाखाय नमः। ओम शंकरात्मजाय नमः। ओम शिवस्वामिने नमः। ओम गणस्वामिने नमः। ओम सर्वस्वामिने नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम अनंतशक्तये नमः। ओम अक्षोभ्याय नमः। ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः। ओम गंगासुताय नमः। ओम शरोद्भूताय नमः। ओम आहुताय नमः। ओम पावकात्मजाय नमः। ओम शुंभाय नमः। ओम ऋजुंभाय नमः। ओम ऋजुंभाय नमः। ओम कमलासनकुंजलाय नमः। ओम एकवर्णाय नमः। ओम द्विवर्णाय नमः। ओम त्रिवर्णाय नमः। ओम सुवर्णाय नमः। ओम चतुर्वर्णाय नमः। ओम पंचवर्णाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम अगस्पतये नमः। ओम अग्निगर्भाय नमः। ओम शमीगर्भाय नमः। ओम विश्ववेदसे नमः। ओम सुरादिन्ये नमः। ओम हरिद्वर्णाय नमः। ओम सुमकराय नमः। ओम परवे नमः। ओम मधुवेशप्रदे नमः। ओम भूष्णे नमः। ओम गमस्तये नमः। ओम गगनाय नमः। ओम चंद्रवर्णाय नमः। ओम कलाधराय नमः। ओम मायाधराय नमः। ओम महामायिने नमः। ओम कैवल्याय नमः। ओम शंकरात्मजाय नमः। ओम विश्वयोनये नमः।
ओम अमेयात्मने नमः ओम तेजोनिधये नमः ओम अनामयाय नमः ओम परमेष्टिने नमः ओम परब्रह्मणे नमः ओम वेदगर्भाय नमः ओम विराट्सुताय नमः ओम पवित्रकन्यापत्रे नमः ओम महासारस्वताय नमः ओम आश्रितात्रे नमः ओम शोरज्ञाय नमः ओम रोगनाशनाय नमः ओम अनन्तमूर्तये नमः ओम आनन्दाय नमः ओम शिखण्डीकृतकेतनाय नमः ओम डम्बाय नमः ओम परमडम्बाय नमः ओम महाडम्बाय नमः ओम वृषांगपये नमः ओम कारणोपात्रदेहाय नमः ओम कारणातीतविग्रहाय नमः ओम अनीश्वराय नमः ओम अमृताय नमः ओम प्राणाय नमः ओम प्राणायामपरायणाय नमः ओम मृदहन्त्रे नमः ओम वीरज्ञाय नमः ओम रक्तश्यामलाय नमः ओम ओम सुब्रह्मण्याय नमः ओम बुधाय नमः ओम प्रीताय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम ब्राह्मणप्रियाय नमः ओम वंशवृद्धिकराय नमः ओम वेदवेद्याय नमः ओम अक्षयफलप्रदाय नमः ओम सुब्रह्मण्याय नमः अलफिरबे भवाय देवाय सुताय नमः भवाय देवाय सुताय नमः सर्वाय देवाय सुताय नमः सर्वाय देवाय सुताय नमः ईशानाय देवाय सुताय नमः ईशानाय देवाय सुताय नमः देवाय सुताय नमः देवाय सुताय नमः रुद्राय देवाय सुताय नमः रुद्राय देवाय सुताय नमः रुद्राय देवाय सुताय नमः रुद्राय देवाय सुताय नमः देवाय देवाय सुताय नमः देवाय देवाय सुताय नमः देवाय सुताय नमः देवाय सुताय नमः महादेवस्य सुताय नमः महादेवस्य सुताय नमः कार्तिकेयाय नमः कार्तिकेयाय नमः महावल्यै नमः महावल्यै नमः देवसेनायै नमः देवसेनायै नमः महाशक्त्यै नमः महाशक्त्यै नमः पूर्णध्वजाय नमः पूर्णध्वजाय नमः महामयूराय नमः महामयूराय नमः समर्पयामि सर கொஞ்சம் அப்படி வழி விட்டுருமாங்க இந்த இடத்துல வழி வந்து கொஞ்சம் வேல்முருகனுக்கு 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 ஸ்ரீதிசி முருகனுக்கு கந்தனுக்கு பழனி முருகனுக்கு எஸ்விசி சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு ஏழு மகனுக்கு ஓம் மதுவாலாய யுதாயவே மதுக்ஷரந்தி சிந்தவः மாத்வீர்ஷம் சந்தோஷதி மதுரக்தமுதோஷதி மதுமான்னோ வனஸ்பதிர்மதுமாகும் அஸ்து சூர்யः மாத்வீர்காவோ பவந்தி புனः மது மது ஓதனமத்ருவதே பரமேஷ்டிவாயேஷः யதோ தனः பரமாமேவைநக்ரிஷ்டியம் கமயதே யந்தோ தசயோ வருஷந்தோ வர்ஜன்யானாः சுபிஃபலாவோஷதயோ பவந்தோ अन्नवतामोदनवता माणिक्यवता येषागुं राजा भूयासं प्रजापतेन प्रभेदान्यो विश्वात् यत्कामा अस्तु वयगुष्याम पतयोरयीनाम्
पूर्वीफलसमायुक्तं नागवल्लीदले कृतं कर्पूरचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं परिगृह्यताम् வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு எஸ்விசிசி முருகனுக்கு எஸ்விசிசி சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு கந்தனுக்கு முருகனுக்கு கான்கார்டு முருகனுக்கு SVCC முருகனுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு வீரவேல் முருகனுக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு देवस्तु विजयददातो यो वेदान् ब्रह्मणो वेदान् अमृतेनामृतां कुरे तस्मै ब्रह्मण ब्रह्माण आयुष्येत्यप्रदानतो आयुष्वेदशिवद्रुमः संवत्सरो विशो वर्णैः नित्यास्तेऽनुजरास्तवा सुब्रह्मण्यो 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 समर्पयामि आचमनीयानन्तरे वैष्णवपत्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयामि वेल मुरुगनुक्के ज्ञानं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाति भवे भवस्तवान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः बलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रबलाय नमः सर्वभूतगणाय नमो मनोर्मणाय नमः अघोरेभ्यो नघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो प्रोतो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिरस्य यः परस्य महेश्वरः वंदे देवसेना समेताय कल्याण सुब्रह्मण्याय महावेदोत्तमं समर्पयामि ऑल द वे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष शिवाहना ब्रह्मण्य स्वामी नमस्कारान् समर्पयामि पूजा करिष्ये पूजां ते सतं समर्पयामि चामराभ्यां विजयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि अश्वानारोहयामि ध्वजानारोहयामि समस्त राजोपचार देवोपचार पूजां समर्पयामि यस्य स्मृत्यासनामोपचार पूजाद्रयादिशो न्यूनं सम्पूर्णतां यान्ति तद्योपदे समर्चितं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वर यत्पूर्णं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते परिपूर्णं तदस्तुते अनेन संकल्पितप्रकारेण अस्मिन् वर्षे आगत स्कंदषष्ठी प्रयुक्त षट्दिने कृत पंचामृत अभिषेक रुद्राभिषेक पूर्वक सूरसंहार प्रसव समस्त पूजा विधानेन भगवान् सर्वात्मक सर्वं श्री पल्ली देवसेना समेत सुब्रह्मण्य स्वामी देवता सुप्रीत सुप्रसन्न वरदा भवन्तो मध्ये संभावित समस्त लोकदोष प्रायश्चित्तार्थं नामत्रयं करिष्ये अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविन्दाय नमः अगाय नमः गुणाय नमः शंकराय नमः अच्युतानंद गोविन्देभ्यो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिया वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशम् मया दासः इति मां मत्वा समस्व पुरुषोत्तम समस्व शिवाहनान् सर्व अपराधानि क्षमस्व सर्वं श्री गुहार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु सत्यायेत आशिषः सन्तु।